नमस्कार। अभी फिलहाल सबसे पहले जिसके निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है, पहले मैं उनकी अनुमति चाहूंगी। मैं अपनी प्रिंसिपल मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो मुझे इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। मैडम शुरू करिए कार्यक्रम। धन्यवाद। समय हो गया है जी। Respected principal ma'am and all the eminent participants, I would like to begin this program with the famous lines of Winston Churchill. He has said, "To improve is to change, and to be perfect is to change often." बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलाव अगर किसी भी क्षेत्र में लाना है तो उसी से किसी का विकास संभव है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिसी हो, हमारा जीवन हो। बदलाव ही आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। So, a very good afternoon to all the eminent dignitaries present over here on this virtual auditorium. With warm greetings, it gives me an immense pleasure to extend you all a warm welcome on behalf of Government PG College, Fatehabad, Agra. First of all, I'm thankful to the Honorable Director Sir, Director Higher Education, Dr. Amit Bhardwaj Sir, for his support and motivation, and under whose patronage our college is able to organize a one-day online orientation program on the topic New Education Policy 2020, Opportunities and Challenges. Thank you so much, sir, for providing us with this opportunity. अब हम बात करते हैं अपनी टॉपिक की, जो आज हमारे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, द टॉपिक इज orientation program on new education policy. So it is definitely about the new education policy introduced by the government in the field of education. The Union Cabinet in July 2020 approved the new education policy, which will replace the National Policy of Education 1986. It is indeed an inclusive framework focusing on the elementary level of education to higher education in the country. However, here in this program, we'll focus on the higher education only. The main agenda behind introducing the new education policy is said to be the need of an hour, and that it will prepare the students to face the challenges of the new world. It will promote skill-based education and enhance the practical skills of the students. The new education policy 2020 no doubt envisages a better education system and open up streams of opportunities for the posterity. However, the fact remains that there are various hindrances which may obstacle the successful implementation of it. वो कहते हैं, all great changes are preceded by chaos. हर नया काम जब शुरू होता है तो कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। इतनी आसानी से लोग चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस आज का ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी ये जो मुश्किलें, जो बाधाएं आ रही हैं, जो मन में शंकाएं हैं, जो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे दिमाग में इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के, आज हम उन शंकाओं का निवारण कर सके और उसके बारे में बहुत ही गहराई से जान सके। सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज इस अवसर पर हमारे साथ एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हमारे चीफ गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि सर बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। हम उनके सामने, मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करती हूँ उनके बारे में कहते हुए भी। हमारे चीफ गेस्ट, हमारे की नोट स्पीकर, उनका स्वागत करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात, मुझे ऐसा महसूस होता है। सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, I would like to introduce with you our chief guest. For that, we have with us Honorable Professor P.K. Jain sir, who has graced the occasion as a chief guest, and it is really a proud moment for us to have him here with us. In fact, sir, अभी तुरंत join कर लिया है सर जी।
Sir, very welcome, sir. Sir, it is really an honor for us to have you here with us. Thank you so much, sir, for being here. Respected participants, I would like to tell you something about our honorable chief guest, Professor P.K. Jain. Sir has been serving as director of Indian Institute of Technology, BHU Varanasi since August 1, 2018, and director of Indian Institute of Technology, Patna since July 1, 2020. Sir has also formally served as chairman board of governors, IIT BHU, for more than 2 years. In addition to this, Sir has also held the position of director, Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur. He is also member of various prestigious institutions and government bodies like Oversight Committee, SERB, DST, Government of India Medical Advisory Commission of National Medical Commission India, and Unnat Bharat Abhiyan and Tech for Seva, Government of India. Sir has also delivered various guest lectures in prominent institutions in India as well as in abroad. There are 6 books too to his credit as editor and guest editor. Sir has received numerous awards during his remarkable journey in his career. He has been honored with many IIT Roorkee University medals. He has also been fellow to the Indian National Academy of Engineers in the year 2019, fellow to the Indian Institution of Engineers in the year 2014. He has also got JSPS Fellowship from the Japanese Society for Promotion of Science in the Lab in the year 2002. Sir, we are really overwhelmed by your presence. My sincere thanks to you that you spared your precious time with us. Sir, I know that your schedule will be very busy, and thank you that you spared your time for us. Sir, your presence has really blessed us. Now, respected participants, I would like to introduce with you our keynote speaker. For this, we have with us Dr. Neetu Singh Ma'am, Associate Professor and Head Department of Home Science, Hemwati Nandan Bahuguna, Government PG College, Naini, Prayagraj. She has been offering her services to the higher education for the last 22 years. She has an excellent academic and professional record with MSc in Nutrition from Vanasthali Vidyapeeth. She is gold medalist in the stream and she did her PhD from the University of Allahabad. She has, to her credit, about 15 research publications in various national and international journals, and she has also authored a book on practical home science. She has guided 1 MPhil, many dissertations, and evaluated many PhDs from various universities. She has delivered a number of invited lectures as keynote speaker and has been resource person in various national and international seminars and conferences. She is a member of UP State New Education Policy 2020 Supervisory Committee and also Home Science Subject Expert of UP State New Education Policy 2020 Syllabi Committee. Thank you so much, ma'am, for being here. Welcome. And जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, हम ऐसी सभ्यता में रहते हैं जहां पर अतिथि का सत्कार और सम्मान किया जाता है। अब मैं अपनी प्राचार्य मैडम से अनुरोध करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे इन अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज एक जो ज्वलंत मुद्दा हमारे यहाँ चल रहा है, नई शिक्षा नीति, उसके बारे में बहुत सारे हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है कि क्या होगा, कैसा होगा। हम लोग कभी नेट के माध्यम से या कभी अन्य माध्यमों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आज जो ये वेबिनार रखा गया है, इसके जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, हायर एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर अमित भारद्वाज जी, सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करती हूं
क्योंकि उनके ही दिशा निर्देश पर हम काम सफलतापूर्वक आगे कर पाते हैं। उनका हमेशा आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जो कि उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना होगा। उनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा उनका जो परिचय था, उसमें बहुत सार गर्भित शब्दों में प्रियंका मैडम ने आपके सामने रख दिया है। तो ऐसे एक विद्वान मुख्य अतिथि को पाकर आज हम अपने को धन्य महसूस करते हैं। उनके इस कार्यक्रम में जुड़ने से हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता नीतू सिंह, उनके बारे में भी मैडम अभी लंबा चौड़ा परिचय आपके सामने रख चुकी है। फिर पुनः उसको दोहराना ठीक नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने विद्वान अतिथियों का जो उनके विचार हैं, उनकी जो जानकारी है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। तो मैं मैडम का भी स्वागत करती हूँ। अधिक समय मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मैडम से मैं अधिक से अधिक उनके अनुभव मैं लेना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं, मैं उन सब का हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। उनके मन में और अधिक जिज्ञासा रहती है कि ये नई शिक्षा नीति आई है, तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, हमको कैसे पढ़ना होगा। तो वो सब इससे जुड़कर अपने अंदर बहुत अधिक हर्ष उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री डायरेक्टर सर डॉक्टर प्रोफेसर पीके जैन सर जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसंचित करें। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक organizers of this webinar on new education policy, which we call as National Education Policy, in fact 2020. And as we know that this policy came after the year 1996. Last education policy came in 1986, so it was long overdue. और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करने में जितने एफर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किए हैं, वो शायद अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है। उन लोगों ने पंचायत स्तर के ऊपर, ग्राम स्तर के ऊपर, स्टेट्स से, बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं, सबसे सुझाव लिए हैं, और उसके बाद उन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को उन्होंने फ्रेम किया है। और इस पॉलिसी के चेयरमैन थे प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, जो कि अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट और एक शिक्षाविद हैं। इस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनफैक्ट हमारे सिस्टम में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की दिशा में फ्रेम की गई है। सबसे पहला उद्देश्य इस पॉलिसी का ये है कि सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो दिशा जी में ये ख्याल रखा गया है फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, maybe to the engineering, medical science, or any education discipline you can take, that student should be given some kind of flexibility to complete their programs, academic programs. जिसमें मैं अपने जो हम लोगों से संबंधित कुछ बातें हैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। हम लोगों के यहाँ पे अब मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का एक ऑप्शन दिया गया है कि स्टूडेंट जब चाहे अपना प्रोग्राम छोड़ के कोई स्टार्टअप, कोई फर्दर ट्रेनिंग करना चाहे कर सकता है, और दोबारा री एंट्री कर सकता है सिस्टम में। तो उसका डिग्री प्रोग्राम इफेक्ट नहीं होगा, और उस बीच में अगर वो
अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ स्टडी करना चाहता है या किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके कुछ कोर्सेज करना चाहता है या कोई स्टार्टअप वगैरह ट्राई करना चाहता है तो वो कर सकता है, और उसको दोबारा हम लोग री एंट्री देंगे और दोबारा वो अपना एकेडमिक प्रोग्राम शुरू कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है एक चेंज है सिस्टम में, जो कि इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें आज हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स काफ़ी स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं और दे आर इंटरेस्टेड मोर इन स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर एंड देन ट्राइंग टू क्रिएट बेसिकली जॉब्स, नॉट एज ए जॉब सीकर बट जॉब क्रिएटर्स। तो दे आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। दूसरा, अभी एक बहुत ही मुख्य मुद्दा इस एजुकेशन पॉलिसी में है और मुझे लगता है कि वो प्राइमरी एजुकेशन से भी जुड़ा है, सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन से भी जुड़ा है, वो कि अब उच्च शिक्षा इंडियन लैंग्वेजेस में भी होनी है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इंजीनियरिंग हुआ या मेडिकल साइंस हुआ या कोई और ऐसे स्पेशलाइज जो हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें हमारी ज़्यादातर शिक्षा इंग्लिश में होती है, क्योंकि बुक्स भी इंग्लिश में है, रिसोर्स मटेरियल सब इंग्लिश में है। हम लोग इंग्लिश में शायद पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, या कहते हैं कि बच्चों को हमें इंटरनेशनल यू कैन से स्टूडेंट्स बनाना है सो दे कैन फाइंड जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। लेकिन इस शिक्षा नीति में ये सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है कि अब इंजीनियरिंग में भी एजुकेशन या मेडिकल की एजुकेशन उसको हम इंडियन लैंग्वेजेस में भी करना होगा, और उसके लिए मिनिस्ट्री से ये पहल शुरू हो चुकी है। स्पेशली मैं आईआईटीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ, और आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ के बारे में कि हम लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि हम सभी आईआईटीज़ को एक लैंग्वेज चूज करना है। जैसे आईआईटी बीएचयू ने हिंदी को चूज किया है, जिसमें हम बच्चों को फर्स्ट ईयर से हिंदी में पठन पाठन कराएंगे। कंपलसरी नहीं होगा, जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ेंगे, जिन बच्चों को लेटर से बंगाली में पढ़ना है तो आईआईटी खड़गपुर ने बंगाली चूज किया है, तो दे कैन स्टडी देयर कोर्सेज ऑफर्ड बाय आईआईटी खड़गपुर, ऑफ कोर्स इन ऑनलाइन मोड। तो इस तरह का सभी 11 भाषाओं में ये एक प्रयास किया है कि हम फर्स्ट ईयर लेवल पे इस बार इसको शुरू करें। कारण इसका एक ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम सब लोग एक हिंदी बैकग्राउंड से ही आए हैं, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से आया हूँ, कि हम लोग जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेते हैं तो वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। पहला तो यह है कि कुछ समय तक तो समझ में नहीं आता है कि क्या टीचर ने पढ़ाया और क्या लिखना है, तो उससे हमारी एकेडमिक्स भी काफ़ी सफ़र होती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर धीरे धीरे पिकअप करते हैं, एंड फोर्थ ईयर तक ठीक है, हम लोग अपना एक भाषा का ज्ञान और जो सब्जेक्ट नॉलेज है दोनों को पिकअप करते हैं। लेकिन ये माना गया है कि जो बच्चे का एक क्यूरोसिटी होता है, स्टूडेंट जो भी कैंपस में आते हैं, अगर उनको उसी की मातृभाषा में, जिस भाषा में उसने प्राइमरी, सेकेंडरी या बाकी एजुकेशन लिया, उसी में अगर उसको पढ़ाया जाए तो उसकी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ सकती है। और ये सर्वे हम लोगों ने आईआईटीज़ में भी किया है। स्टूडेंट से पूछा गया है कि बताइए आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, और एक बड़ा आश्चर्यजनक उसमें तथ्य सामने आया है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं, वो बच्चे भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको पढ़ाया इंग्लिश में गया है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में अप टू 12th स्टैंडर्ड, लेकिन वो बच्चे इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, या जो भी उनको पढ़ाया गया है वो सिर्फ एक इंग्लिश माध्यम के नाम से पढ़ाया गया है, और बाकी उन लोगों को उसमें अभी इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, और वो हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक चेंज होगा अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रावधान को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और उसमें एक और चीज़ मुझे लगती है कि इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक जो भाषा के तौर पे एक जो आपस में भेदभाव होता है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे किसी भी कैंपस में आप जाइए, 30-40% दे कम विद रूरल बैकग्राउंड, जिन्होंने कभी शहर नहीं देखा है या जिन्होंने कभी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन नहीं पाई है, तो उन बच्चों में और जो बच्चे दूसरे फॉरवर्ड या इंग्लिश मीडियम से आते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब उस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि धीरे धीरे ख़त्म होंगी,
और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए भी एजुकेशन में, स्पेशली हायर एजुकेशन में, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है। टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाते रहे हैं इतने सालों से, तो वो कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। लेकिन चैलेंज है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने और उसको हम इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं। इसके बाद चैलेंज आएगा कि बच्चों के लिए जॉब कैसे क्रिएट किए जाएं उसी भाषा में, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़्यादातर हम जहाँ भी इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इंटरव्यूज आर हेल्ड इन इंग्लिश ओनली। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे पिछड़ जाएं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। तो उसके साथ साथ ये भी एक प्रोविज़न रखा गया है कि इन बच्चों की भाषा पे भी ध्यान दिया जाएगा। दैट मीन्स दे विल बी टॉट इंग्लिश and other foreign languages also in the campus, and it will be made sure that they learn their subjects in their own languages, but at the same time they are good English and language well. तो चैलेंज है, बट वी हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है इस एजुकेशन पॉलिसी का। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि शिक्षा को कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, कैसे बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चा अगर किसी एक डिसिप्लिन में आया है तो ये नहीं कि सिर्फ उसको उसी डिसिप्लिन में पढ़ाया जाए। अगर वो चाहता है किसी और डिसिप्लिन में जाना या कुछ वहाँ पे कुछ पढ़ना चाहता है तो उसको उस तरह का ऑप्शन भी दिया जाए। तो आइडिया सिंपल ये है कि वी शुड नॉट फोकस अवर सेल्व्स टू in one direction only, but we should try to give them several options, and it should be left to the student to choose and pick as per his or her own choice. तो चैलेंज है, आप लोग भी मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, और ये सिर्फ हायर एजुकेशन या प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन का इशू नहीं है। दिस इज बेसिकली एन इशू विच affects all of us, and we should all try to put our best foot forward so that we can achieve the core objectives at least of this education policy. और अच्छा है, मैं आपके साथ और ज़्यादा समय नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, एंड आई विश दैट यू हैव अ गुड डे टुडे, and you will get some good insights into the new education policy. As you said, Dr. Neetu Singh is here. She will talk. She will give the keynote lecture on this. So I wish all the best to all of you. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से बताया सर, थैंक यू सर। हमें अच्छे से जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आने से हमारे कार्यक्रम की गरिमा बहुत बढ़ गई है सर। धन्यवाद सर। नहीं, ये गरिमा आपकी नहीं है, मेरी भी बढ़ी है, क्योंकि हम लोग सब शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं। नहीं सर, आप तो लोग जैसे ऐसा बड़े नहीं है, वी आर ऑन द लोग सेम प्लेटफॉर्म, तो ऐसा नहीं है। हम सब लोग एक ही दिशा में काम करना है और ये कोशिश करनी है कि इस शिक्षा नीति को कैसे हम लोग सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन वी हैव टू डू इट। जी सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा, सर ने कितने डिटेल से अच्छे से बताया नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि किस तरह से IITs में भी वर्क किया जा रहा है। आई मीन इट्स जस्ट अ न्यू थिंग फॉर अस टू सी कि कैसे बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो अपने मन को तैयार करना होता है कि ये जो चेंज आ रहे हैं उन्हें हमें कैसे अडॉप्ट करना है अपने आप को। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके और क्या बारीकियां हैं और उसके क्या तथ्य है इनके बारे में, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। तो बेहतर होगा कि हम सही कॉन्सेप्शन को पहले जानें कि वो आखिर है क्या चीज और उसका कैसे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ज़्यादा समय नहीं मैं लेती हूँ, और मैं अपनी कीनोट स्पीकर नीतू सिंह मैम को आमंत्रित करती हूँ कि मैम प्लीज़ आप चार्ज लीजिए और आप हमें बताइए कि किस प्रकार से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से क्रियान्वित होगा, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या क्या इसमें समस्या आएंगी, और हम हमारे लिए उसमें क्या चीज़ें हैं और हम छात्रों के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैम प्लीज़। Thank you so much, Dr. Priyanka. Before I start my presentation,
मैं यहाँ से सर्वप्रथम आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स टू द चीफ पेट्रन डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रोफेसर अमित भारद्वाज सर, जिनकी अनुपस्थिति में भी हम उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आरंभ हम लोगों ने किया है। तो सबसे प्रथम मैं उनका अभिनंदन और अभिवादन सर करती हूँ। एंड टू आवर एस्टीम्ड चीफ गेस्ट प्रोफेसर पी.के. जैन सर, डायरेक्टर IIT BHU एंड IIT पटना, बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान सर का, और आभारी हूँ सर की कि आपके व्याख्यान के माध्यम से एक बैकग्राउंड, एक माहौल इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बन पाया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। माय वेरी सिंसियर ग्रीटिंग्स टू द पेट्रन प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा मैम, डॉक्टर प्रियंका, and all the galaxy of intellectuals, those who are connected with us through on this orientation program through this virtual platform. एक बार पुनः आप सभी शिक्षक विदों का, यहाँ जितने भी हमारे साथ एकेडमिशियंस जुड़े हैं, आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। Now coming to the topic, that is the opportunities and challenges of new education policy or national education policy. So the time limit के अंदर 40 to 45 minutes पे अगर हम national education policy पे बात करें तो time is really a big constraint. So I will try to compile this presentation focusing on the main points of national education policy, and the core of focus area will be the UG and PG program which we are going to implement, the framework of UG and PG program which we are going to implement from this session. Basically क्योंकि इस समय बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं UG कोर्सेज में, और हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में वो सीन, वो फ्रेमवर्क एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर बच्चा कोई यूजी में एडमिशन लेने आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो अपने सब्जेक्ट्स का चॉइस कैसे करेगा और कैसे वो किन सब्जेक्ट्स को लेके आगे बढ़ेगा, और उन सब्जेक्ट्स के साथ वो पीजी या रिसर्च के लेवल तक कैसे जाएगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर प्रियंका ने कही कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हमारे मन में बहुत सारे संशय होते हैं, निसंदेह होना लाजमी भी है, क्योंकि हम एक रूटीन के आदी हो जाते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर हमारे दिन के रूटीन में 1 घंटे में भी अगर कहीं शिफ्ट होता है तो हम थोड़ी सी दिक्कत कुछ दिनों तक महसूस करते हैं, ये सही है। लेकिन जब हमें उसकी अहमियत पता चलती है, उसके लाभ पता चलते हैं, तो वी गेट अकस्टम टू इट, और हम बहुत खुशी खुशी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेम इज विद दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन, या आई कुड डू इट। थोड़ा सा ब्रीफिंग के लिए केवल की आवश्यकता right is this is the new education policy. Okay. Now right. एक सेकंड, ये स्लाइड ये आगे Now, before starting this presentation, I always remember the words of the great Abdul Kalam Sahab sir, a true human being and a great teacher. ये जो इनके शब्द हैं वो हमेशा मेरे जहन में रहते हैं whenever we go for teaching, कि some of the brightest minds in the country can be found on the last benches of the classroom. एक क्लासरूम से यहाँ मतलब है आपका एक सोसाइटी से, एक देश से, एक राष्ट्र से, कि वी कैन नॉट लिमिट आवर टैलेंट्स विद इन दी बाउंड्रीज। हम ये नहीं कह सकते कि टैलेंट फर्स्ट बेंच पे ही होगा या सेकंड बेंच पे ही होगा। अकॉर्डिंग टू हिम टैलेंट कैन बी फाउंड टू द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम।
और what I could interpret from these words कि यहाँ पर last bench से what he mean to say is the deprived section of our society, the students who are not getting the resources, they are not resources are not accessible to them. So in the true sense, education is one that reaches to the last bench of the classroom. अगर शिक्षा लास्ट बेंच तक, जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अगर उन तक शिक्षा पहुंच जाती है तो सही मायने में शिक्षा वही है. एंड दिस इज व्हाट द विजन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज. सो अब कलाम साहब के इन शब्दों के साथ हम इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को आरंभ करते हैं. Now, role of education, not going to in much detail. Education is one which brings about complete transformation of an individual, a complete transformation of his personality, a development of his personality. तो शायद इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो कंपलसरी कोर्सेज हैं उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पेपर के रूप में रखा गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा से हमें ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन व्यक्तित्व विकास कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए इसको कंपलसरी किया गया है. एंड दिस इज व्हाट द रोल ऑफ एजुकेशन इज. दिस इज द जर्नी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई और इट्स नाउ ऑलरेडी आफ्टर 74 years of independence. This is just the third education policy in the post independent India. It's really a great shocking news, a great shocking information for all of us कि पिछले 74 सालों में हमने हर क्षेत्र पर ध्यान दिया, हर क्षेत्र में कई नीतियां आई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये मात्र तीसरी पॉलिसी है. और जो इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी. एंड दिस पॉलिसी हैज कम आफ्टर 34 years, अ बिग गैप ऑफ 34 years. और 34 साल में पूरे ग्लोबल लेवल पर कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ होगा. एंड आवर एजुकेशन सिस्टम इज स्टिल विद दोज 92, 86 और 92 के ट्रेंड पे ही हम चल रहे हैं. सो दिस वाज द हाई टाइम, the greatest need of the hour to implement this national education policy, because in 34 सालों में employment landscape बदला है, knowledge and education का landscape बदला है, and global ecosystem में भी change आया है और हम वहाँ पर पिछड़ते जा रहे थे. तो हमें उसको पैच अप करना था और this could be made possible only with the implementation of this new education policy. The principle on which this policy is implemented or set up is the social, ethical and emotional capacity development of an individual. The earlier policies आई थी that were focused only on the critical thinking, on the cognitive development, and this social, ethical and emotional capacity was left far behind. एक व्यक्ति शिक्षित तभी कहलाता है जब वो सामाजिक, भावनात्मक और उसका व्यवहार भी संतुलित हो. शिक्षा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने ज्ञान अर्जित कर लिया और हम बाकी की चीज़ों के साथ संतुलन हमारा नहीं है. तो ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सिद्धांत है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का. एंड विथ अ वेरी वेरी वाइड विजन. विजन क्या है? To bring India, make India a global knowledge superpower. हमें वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर भारतीय शिक्षा पद्धति को और भारतीय शिक्षाविदों को लाना है. और वो हम कैसे लाएंगे? जब हम वो 34 साल के गैप को हम भर पाएंगे. And this is what this new education policy has with it. And with all if implemented in a very proper and with this vision, there is no doubt that this education policy is going to bring a very drastic change in the education system of higher education of India. Right? अब इस पे हम बहुत detail why this national education policy. This our chief guest sir has very nicely explained कि ये जो national education policy है इसका बैकग्राउंड ये स्थापित ही हुई है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर.
अब जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारी संशय हैं, जिसको हम आगे के स्लाइड्स में भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक खिचड़ी शिक्षा तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये आपको स्वतंत्रता देती है, ये आपको फ्रीडम दे रही है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि आप फ्री हैं, आप को हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप आर्ट्स के हैं तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप साइंस के हैं तो आप म्यूजिक नहीं सीख सकते, आप कॉमर्स के हैं तो आप लिटरेचर नहीं सीख सकते हैं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसका वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स है, जो कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके साथ आगे बढ़ रही है। तो आई विल टेक दिस इन डिटेल इन माय कमिंग स्लाइड। अब हम आते हैं, ये जो मेन फोकस एरिया है आज के प्रेजेंटेशन का, वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस और द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन यूजी एंड पीजी प्रोग्राम अंडर NEP 2020. Now, this national education policy is going to be implemented from this session 2021 in almost all the state universities of Uttar Pradesh, right? Now, इससे पहले कि ये एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, ये हमारे स्टूडेंट कर कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपने विषयों का चुनाव करेगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता हुआ बच्चा आपके पास बहुत सारे सवालों के साथ आएंगे, क्योंकि उनका कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले व्हेनेवर अ स्टूडेंट कम्स फॉर एडमिशन, द फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी। जिस भी फैकल्टी को या संकाय को वो छात्र या छात्रा चुनाव करेगी, वो कहलाएगी ओन फैकल्टी। आइदर वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, मैनेजमेंट, जो भी फैकल्टी है उसका चुनाव करने के लिए एक छात्र स्वतंत्र है कि आप किस संकाय का चुनाव करेंगे। देखिए, हम यहाँ फिर बढ़ रहे हैं संकाय ही वाइज। मल्टी डिसिप्लिनरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी संकाय को एकदम से गायब कर दे, नहीं, आप उस संकाय के ही अंतर्गत आप बढ़ेंगे और नॉलेज को गेन करेंगे। अब जब आपने एक संकाय का चुनाव कर लिया कि मुझे आर्ट्स में बैचलर की डिग्री करनी है, साइंस में करनी है, कॉमर्स में करनी है, देन यू हैव टू सिलेक्ट 3 मेजर सब्जेक्ट्स। आप 3 मुख्य विषयों का चुनाव करेंगे। इसमें से 2 मुख्य विषय आपकी अपनी फैकल्टी के होंगे। अपनी फैकल्टी में जिस भी फैकल्टी में आप बैचलर्स की डिग्री चाह रहे हैं, आप आर्ट्स में चाह रहे हैं, आप मुख्य से चुनाव करेंगे और जो विषय होगा, नाउ यू हैव एन ऑप्शन हियर, वो आपकी अपनी फैकल्टी का भी हो सकता है या फिर आप अदर फैकल्टी का भी उसको ले सकते हैं। जैसे अगर आपने आर्ट्स की फैकल्टी का चुनाव किया है कि मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री चाहिए, तो आप 2 सब्जेक्ट उसमें से एक आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, एक सोशियोलॉजी ले सकते हो, या आप एक होम साइंस और एक पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। और जो तीसरा मेजर सब्जेक्ट है उसके लिए आप फ्री हो। आप आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट को ले सकते हो, आप लैंग्वेज के कोई सब्जेक्ट को ले सकते हो, आप साइंस के ले सकते हो, आप कॉमर्स के ले सकते हो। तो देखिए, अगर आपको आपने 2 सब्जेक्ट आर्ट्स के लिए, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, और आप चाहते हो आपकी थोड़ी सी आपको इनकम टैक्स की नॉलेज हो, तो आप कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हो। आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको बॉटनी या जोलॉजी की नॉलेज चाहिए, तो आप तीसरा वहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं। अब आप फ्री है कि तीसरा सब्जेक्ट आप किसी भी फैकल्टी से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं, देन देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम एनी फैकल्टी। अब ये जो एक 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, इसके साथ आपको एक माइनर सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ना है। माइनर सब्जेक्ट वो किसी भी फैकल्टी का होगा, अपनी फैकल्टी का या अदर फैकल्टी का हो सकता है, लेकिन ये वो 3 विषय नहीं होंगे जिसका उसने 3 मेजर सब्जेक्ट की तरह चुनाव किया है, राइट। अगर आपने बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का चुनाव मेजर सब्जेक्ट के रूप में कर लिया है, तो आप माइनर सब्जेक्ट के रूप में इन 3 विषयों का चुनाव नहीं करेंगे। आप होम साइंस कर सकते हैं, आप कॉमर्स का कर सकते हैं, आप जोलॉजी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट का कर सकते हैं। तो जो माइनर सब्जेक्ट होगा आपका, वो इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स के अलावा होगा। और ये जो माइनर सब्जेक्ट है, this you have to go with the first year, second year and even in the 4th year. आपको 2 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में, this here I am talking about year and 1 year means 2 semester, right? तो आपको 1 year means फर्स्ट 2 सेमेस्टर में आपको एक माइनर सब्जेक्ट क्लियर करना है,
Then second year means another 2 semester you have to clear one minor subject. Then in third year no minor paper. Then again in fourth year you will be having one minor subject और उसमें भी आपके पास 2 सेमेस्टर रहेंगे जिसमें कि आपको उसको क्लियर करना होगा, ठीक है. Then there is one vocational course 1 to 4 सेमेस्टर में, that means for the first 2 years. और ये वोकेशनल कोर्स भी आपकी यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया होगा अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, और वो ओपन होगा. हर यूनिवर्सिटी ने अपने अपने वोकेशनल कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जिसमें कि स्टूडेंट फ्री होगा कोई भी वोकेशनल कोर्सेज को अडॉप्ट करने के लिए फॉर द फर्स्ट 4 सेमेस्टर, ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट को पढ़ना होगा एक कंपलसरी को करिकुलर सब्जेक्ट. ये कंपलसरी पेपर है. इसके लाइक इन मेनी यूनिवर्सिटीज दे हैड एनवायरमेंट एजुकेशन, कहीं पे है ना, इस तरह का एक कंपलसरी पेपर था. अगर आप उसको क्लियर नहीं करते थे तो आपको बैचलर की डिग्री नहीं मिलती थी. सेम वे दिस इज अ कंपलसरी पेपर और ये हर सेमेस्टर में एक होगा फ्रॉम 1st to 6th सेमेस्टर. शुरू के 6 सेमेस्टर में आपको 6 कंपलसरी पेपर पढ़ने होंगे. इसमें 40% मिनिमम मार्क्स के साथ होगा and these marks are not going to be included in the CGPA of the student, right? इसमें पासिंग होगा. इसका आपके परसेंट से, आपके परसेंटाइल से, आपके CGPA से इसका कोई भी लेन देन नहीं होगा. This is just to have you a very brief knowledge of some of the very essential topics like health and hygiene, nutrition, ये कम्युनिकेशन स्किल्स. लाइक सर ने अभी इससे पहले बताया हमारे चीफ गेस्ट सर ने कि कम्युनिकेशन स्किल आपका कितना अच्छा होना चाहिए, स्पेशली बीइंग अ टीचर. It doesn't matter whether you are communicating in English, Hindi, Sanskrit or any of your regional language. You should have a good command of your language. आप मदर टंग में बोलिए, आप रीजनल लैंग्वेज में बोलिए, आप इंटरनेशनल लैंग्वेज में बोलिए. आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर्स अ मोस्ट, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स. क्योंकि बच्चे को अगर हमें समझाना है तो हमें रीजनल लैंग्वेज में भी आना पड़ता है, हमें मातृभाषा में भी आना पड़ता है, एंड वी हैव टू समटाइम्स डील इन इंग्लिश ऑल्सो. तो हम ये नहीं कह सकते. तो ये कम्युनिकेशन स्किल का पेपर भी कंपलसरी किया गया है. और आगे जब आप इसके सिलेबस को, मेरे ख्याल से हमारे साथ यहाँ जितने भी जुड़े शिक्षकगण हैं, आप सब ने काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल की वेबसाइट से जितने भी सिलेबस वहाँ पे अपलोडेड है आपने डाउनलोड करके अपने अपने सब्जेक्ट के ज़रूर देखे होंगे. और आपने इसमें पाया होगा कि हर एक सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट से ही हम लोगों ने से लिए एक्सपर्ट्स को ये निर्देश थे फ्रॉम द ऑनरेबल ACS मैम मोनिका गर्ग मैम कि हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को उसमें इनकॉर्पोरेट करना है और हमें इस तरह का कोर्स या सिलेबस डिज़ाइन करना है कि द स्टूडेंट शुड बी एनरिच्ड with more and more the rich tradition and culture of India. तो आप लगभग सब पेपर में देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट, हर सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है. और इसके साथ ही साथ every subject is now going to have a practical also, practical portion, जो कि हम लोगों ने अभी तक लिटरेचर में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में कभी भी प्रैक्टिकल का पोर्शन नहीं था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हर एक थ्योरी सब्जेक्ट में भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, जस्ट टू ब्रिंग आउट द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट. उसको एक्सपोजर मिले, वो बोलना सीखे, वो अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने रख पाए. ये एक थोड़ी सी आपको मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन बताया है कि यूजी कोर्स के लिए अगर बच्चा आता है तो उसका क्या फ्रेमवर्क होगा. अभी डिस्कशन वाले जो सेशन है उसमें आपको अगर कोई चीज़ों की दिक्कत है या आपको और क्लियर करना है तो आप बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं. अब हम आते हैं कुछ जो सेलिएंट फीचर्स है और NEP 2020 के, वो क्या है. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये हम सब जानते हैं. पहले क्या होता था कि अगर किन्हीं कारणों से आपने BA फर्स्ट ईयर किया और आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर छूट जाता था तो यू हैव नथिंग इन योर हैंड, आपके पास कुछ भी हाथ में नहीं रहता था. बट अंडर दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इफ यू आर लिविंग दिस कोर्स आफ्टर 1 year fulfilling all the norms required, then you will get a certificate in the faculty. अगर आपने आर्ट्स के मेजर सब्जेक्ट लिए या साइंस के लिए या कॉमर्स के लिए तो आपको डिग्री क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट इन आर्ट्स फैकल्टी.
सर्टिफिकेट इन कॉमर्स फैकल्टी, सर्टिफिकेट इन साइंस, लाइक दैट आपको इसकी सर्टिफिकेट मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years यू आर गेटिंग द डिप्लोमा इन द फैकल्टी। जिस भी फैकल्टी के सब्जेक्ट मेजर आपके होंगे यू आर गोइंग टू गेट डिप्लोमा इन दैट फैकल्टी। और कंटिन्यूएशन में अगर आपने पूरे 3 years कर लिए हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री इन द फैकल्टी मिलेगी, जिसमें कि आपके चुनाव किए हुए मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद अगर अगेन देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ री एडमिशन इन हायर लेवल आफ्टर एग्जिट। ऐसा नहीं है कि आपने 1 year किया और 2 साल 3 साल का आपका गैप हो गया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको री एडमिशन मिलेगा। हाँ, और वो भी हायर लेवल पे मिलेगा। कभी भी आप जब एग्जिट करते हो तो आपकी एंट्री ओपन रहेगी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द NEP 2020। Now, a candidate with minimum 60% of credit in 3 years course in any faculty will get degree of that faculty. आपने 3 वर्षों के दौरान जो भी मेजर सब्जेक्ट्स चुने हैं वो उन मेजर सब्जेक्ट्स जिस भी फैकल्टी के हैं उसके मिनिमम 60% क्रेडिट जिस भी फैकल्टी के आपके आएंगे आपको डिग्री उसी फैकल्टी की मिलेगी। अगर आपने के जो % क्रेडिट आर्ट, अगर आपको डिग्री इन आर्ट्स फैकल्टी मिलेगी दैट मीन्स आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एज अ मेजर सब्जेक्ट आप आर्ट्स के लेके चले हो तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स मिलेगा। अगर आपने साइंस के लिए हैं 2 मेजर और आप उसके साथ कंटिन्यू किए क्योंकि थर्ड हमारे पास ऑप्शन के रूप में है तो आपको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी, राइट। तो आपको 60% मिनिमम है क्रेडिट गेन करना, तभी आपको वो डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप, a candidate not able to secure minimum 60% credit in any one faculty during the 3 years bachelor course will get degree in Bachelor of Liberal Education। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में 2 मेजर सब्जेक्ट आर्ट्स के पढ़ लिए, फिर थर्ड ईयर में आके आप 2 कॉमर्स के पढ़ ले रहे हो, सेकेंड ईयर में, देन थर्ड ईयर में आके फिर आपने अपनी साइंस फैकल्टी कर ली, तो इन दैट केस यू आर नॉट सिक्योरिंग मिनिमम 60% क्रेडिट इन एनी वन फैकल्टी। इन दैट केस तब भी ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ लौटेंगे, यू विल गेट अ बैचलर्स डिग्री ऑफ लिबरल एजुकेशन। आपको एक बैचलर्स की डिग्री मिलेगी और उसका नाम होगा इन लिबरल एजुकेशन, राइट। अब नेक्स्ट है, co-curricular courses has to be passed with 40% marks which will not be included in CGPA। जो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये जितने भी co-curricular courses हैं 6 सेमेस्टर्स के लिए 6 co-curricular courses हैं जिसको स्टूडेंट को मिनिमम 40% मार्क्स के साथ क्लियर करना होगा। ओनली पासिंग इज रिक्वायर्ड। इसका आपका CGPA से परसेंटाइज से इसका कोई भी लेन देन नहीं होगा। Then any one subject out of 2 major subjects of third year and major subject of 4th, 5th and 6th year can be opted for research project। अब ये next slide जब हम देखेंगे तो उसमें वो टेबल से आपको क्लियर होगा कि क्या फ्रेमवर्क है। ये मेरे ख्याल से लगभग सबने देखा होगा इसको, ये जियो के साथ आया था दिस टेबल। नाउ दिस टेबल से ये पूरा क्लियर है कि फर्स्ट ईयर में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है उसके पास 3 मेजर पेपर है, सब्जेक्ट है, 2 मेजर सब्जेक्ट ऑफ हिज फैकल्टी, 1 हिज और अदर फैकल्टी। देन इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर ही हैज टू क्लियर 1 माइनर, ठीक है। तो उसके पास वोकेशनल होंगे, ईच सेमेस्टर में 1 वोकेशनल वो पढ़ेगा एंड ईच सेमेस्टर में ही हैज टू टेक 1 कंपल्सरी को-करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो इसका फ्रेमवर्क हो गया। अब इसमें से जो मेजर सब्जेक्ट के साथ वो आगे बढ़ेगा इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो जब थर्ड ईयर में स्टूडेंट आता है तो वहां पर आकर ये रिसर्च प्रोजेक्ट कंपल्सरी किया गया है, राइट। नाउ इस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंपल्सरी करने के पीछे भी एक विजन था कि जनरली जब बच्चा अपने PG के बाद स्टूडेंट ट्राइज फॉर हमको क्या पता इस रिसर्च व्हाट हैपेंस कि रिसर्च के लिए उसको बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि हाउ इज गोइंग टू प्रोसीड विद द रिसर्च। इसके लिए थर्ड ईयर में जब स्टूडेंट है तो उसको हम लोग एक बेसिक रिसर्च प्रोजेक्ट की नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर क्वालिफाइंग है ये भी तो दोनों सेमेस्टर में थर्ड ईयर के रिसर्च है और जो मेजर इसका पेपर होगा स्टूडेंट का थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में,
तो वो उन्हीं मेजर पेपर के किसी भी टॉपिक के साथ, रिसर्च के साथ अगर वो प्रोसीड करता है तो ही विल बी बेनिफिटेड व्हेनेवर ही प्रोसीड्स फॉर हिज PhD प्रोग्राम आफ्टर 6 years, ड्यूरिंग दिस आफ्टर 6 years। तो जब वो PhD के लिए प्रोसीड करेगा तो उसके पास बहुत सारा समय रहेगा। BA थर्ड ईयर से ही उसने अपने रिसर्च वर्क को आरंभ कर दिया था और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने PhD तक। So now he has sufficient time with all the points clear and he can manage his research work very easily and within time। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट बहुत बेनिफिटेड होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चों को क्लियर नहीं होता कि थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट लिया आप PG कर रहे हो, PG तक उनके पास रिसर्च के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे जब उनको पहले से ही हम रिसर्च का एक बैकग्राउंड थर्ड ईयर से ही अगर स्टूडेंट को दे देते हैं, तो PhD के लिए जब स्टूडेंट आते हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। ये एक ब्रीफ हो गया हमारे पूरा UG और PG के कोर्स का, ये आउटलाइन है। और नाउ एज आवर चीफ गेस्ट सर हैज ऑल्सो वेरी वेल सेड कि जब भी हम कोई नई चीज़ को आरंभ करते हैं चैलेंजेस आते हैं और बहुत चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट। व्हाइल reframing and restructuring of this syllabus when we started, we have to face number of challenges, but we are very much grateful to the very efficient leadership of ACS ma'am, Mrs. Monica Garg ma'am, very efficient leadership of Honorable Director sir, Professor Amit Bharadwaj sir, and cooperation and contribution from all the subject experts। तो ये जो syllabus formation का जो 5th point है, ये बहुत ही arduous task था। It was a Herculean task which was very well managed with the cooperation of all the subject experts from different extremes। तो एक जो challenge था syllabus formation का, ये पूरा हो गया। No doubt the first challenge है determining the focus areas for vocational education। This is a very big challenge because till now higher education में हमने vocational education की बात नहीं की थी। And another major challenge for vocational education is that कि हमारे दिमाग में एक mindset था कि after doing his +2 or 12th, a student goes for his graduation, then post graduation program, and if a student opts for polytechnic या ITI को वो opt करता था after 12th, then that was not considered equivalent to or very inferior उससे उसको देखा जाता था, and a student with a degree in his hand was given much more weightage, and there was no word of vocational education in higher education। So ये फर्स्ट टाइम है कि वोकेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ है हायर एजुकेशन में। चैलेंजेस आएंगे, बट वी ऑल आर रेडी टू कोप अप विद दोज चैलेंजेस बिकॉज इन द लॉन्ग रन our students are going to be benefited with this vocational education। The skill gap analysis, we have to find out where our students are lacking in the skill development, mapping of local opportunities, और this is another very important thing कि local opportunities से मतलब है कि whatever the area where your university or college is located, there must be some very renowned thing or something local ऐसी जो बहुत famous, जो बहुत प्रचलित होगी, and still the student and people are unaware of that and not doing any work or any research in that local thing। So उसको map out करना, like people of आगरा, क्योंकि आप आगरा के कॉलेज के हैं, तो जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं पेठा बहुत फेमस है, और वो पेठा सफ़ेद कद्दू वाइट पम्पकिन से बनता है। Now what more possibilities you have to explore the richness, like हिस्ट्री में आगरा बहुत टॉप पे है, बहुत सारी एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं हिस्ट्री में। उसी तरह से ऐसी कौन सी रिच चीज़ें हैं और आगरा की जिसको कि हम एक्सप्लोर करें, हमारे स्टूडेंट्स उसको स्टडी करें BA थर्ड ईयर के रिसर्च पेपर से, और उस पर रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करें इन देयर PG एंड PhD में। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज में और बहुत ही कम एक्सपेंडिचर में the student is going to come up with something very new and very fascinating and really जिसको कि appreciation मिलेगा at the global level also।
क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल हमारी जो भी इंडियन के स्पाइसेस है, इंडियन की अपनी इंडियन हिस्ट्री है, द रिचनेस ऑफ द कल्चर, ये हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाना। तो हम प्रमोट करें अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए कि जो भी लोकलाइज्ड चीज़ें हैं, जो भी हमारी लोकल रिचनेस है, उसको हम एक्सप्लोर करके लाए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। सो दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज, बट टीचर्स उसको प्रमोट करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, एंड वी आर वेल कॉन्फिडेंट दैट वी विल कम अप विद समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी न्यू विद दिस पॉलिसी। स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर ईच डिसिप्लिन, वोकेशन, प्रोफेशन, ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो गया है, और बहुत सारे फ्रेमवर्क कोर्सेज के और सिलेबस के काउंसिल की, हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट लास्ट है इज द क्लियर एक्शन प्लान विद टारगेट्स एंड टाइमलाइन टू बी डेवलप्ड। टाइमलाइन भी अब डेवलप हो गई है, टारगेट्स भी हैं। नाउ ऑल दैट रिमेन्स इज द implementation of this national education policy with a very positive attitude, exploring the opportunities, exploring the maximum opportunities for our students, and the suggestions from all the academicians are always welcome, क्योंकि ये अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में है। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये अपने ग्रोइंग स्टेज में हुआ है इसका। जैसे जैसे ये ग्रो करेगी, सजेशंस फ्रॉम ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, फ्रॉम द एकेडमिशियंस इज गोइंग टू रीशेप इट, इज गोइंग टू पॉलिश इट, इज गोइंग टू रिफाइन इट, एंड वी विल बी एबल टू गिव बेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स। So challenges are many, लेकिन these are the main challenges, and last में thank you. So with this I am completed from my side, or now I will request Dr. Priyanka. Thank you, ma'am. Yes, okay. Thank you, ma'am. It was really a very composite, a very detailed analysis of the new education policy 2020, and I hope all the participants would have been benefited from this. सभी को जो from the scratch आपने जितनी चीज़ें बताई हैं मैम, सभी को पूरी जानकारी मिली होगी, मुझे इस बात की उम्मीद है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने काफ़ी स्टडी करने की कोशिश की थी इस फील्ड में, लेकिन वो चीज़ें भी मुझे नहीं पता थी जो आपने बताई मैम। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड I would request respected participants, if they have any queries, they can put it up. So participants, do you have any query? अगर आपकी कोई मन में विचार हो, कोई आपको लगता है कि नहीं ये पहलू भी पूछा जा सकता है या कोई समस्या है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बात को यहाँ कहें, ताकि यहाँ पर हम उसे डिस्कस कर सकें। ओके मैम, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। नमस्ते मैडम, मैं डॉक्टर सुरेश पटेल। मैडम ये मैं जानकारी लेना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि दो आपके जिस भी फैकल्टी को चूज कर रहे हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, एक फैकल्टी किसी भी फैकल्टी से अदर फैकल्टी से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए, प्लस आपका जो है एक आपका जो पेपर है अलग से चूज करने के लिए, मतलब कॉमन टाइप का पेपर जो किसी से भी चूज कर सकते हैं इन तीनों के अलावा, तो ये 4 पेपर हो गए, और एक मतलब इस तरीके से 2 आपने और गिनाया, तो क्या हमको मतलब जो भी बच्चे हैं उनको 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप या तो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट 6 पेपर पढ़ेगा या फिर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेगा। 5 तो उसके कंपलसरी वाले हैं, 3 मेजर हो गए उसके, 1 माइनर हो गया एंड 1 वोकेशनल हो गया। अब को करिकुलर वाला जो कंपलसरी पेपर है वो आइदर फर्स्ट सेमेस्टर में लेके कंप्लीट कर सकता है, सॉरी ये माइनर वाला, को करिकुलर तो कंपलसरी है, जो माइनर वाला ऑप्शन है वो या तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में लेके कंप्लीट कर सकता है या फिर सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड तक, फर्स्ट ईयर का जो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो तभी मिलेगा जब उसने ये 6 पेपर अपने क्लियर कर लिए होंगे। सिर्फ एक जो माइनर पेपर है उसमें उसके पास ऑप्शन है आइदर इन द फर्स्ट सेमेस्टर और इन द सेकंड सेमेस्टर। बाकी का जो वोकेशनल है वो दोनों सेमेस्टर में 1 कंपलसरी है, और जो को करिकुलर है वो भी दोनों सेमेस्टर में 1 कंपलसरी है। नहीं तो इससे मैडम जैसे सब्जेक्ट का बर्डन जो है, जो मतलब एक तरीके का जो वर्क लोड है बच्चों के ऊपर, वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए ये जो डिजाइन करने के बाद ये माना गया है, इसको इस ढंग से लिया है कि ये जो
माइनर पेपर को जो डिजाइन किया है, ये इसी मोटिव से डिजाइन किया गया है कि इसको लाइट रखना है, इसको बहुत सब्जेक्टिव नहीं बनाना है। अगर मैं आर्ट्स की हूँ, इट डजंट मीन कि मुझे कंप्यूटर का नॉलेज ना हो, इट डजंट मीन कि मुझे इनकम टैक्स का नॉलेज ना हो, इट डजंट मीन कि मुझे लिटरेचर या किसी और चीज का नॉलेज ना हो, बिकॉज वी आर इन अ फेज वेयर we are expected to have a knowledge, at least a little bit knowledge of computer, income tax, calculation. हम आर्ट्स के हैं तो ये हम नहीं कह सकते मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो माइनर पेपर बनाए गए हैं, these are made with this view कि एक स्टूडेंट को बेसिक, स्पेशली ये क्यों ऐसा आया मैं यहाँ बताऊं, क्योंकि जब हम लोगों ने सिलेबस फॉर्मेशन को स्टार्ट किया था तो तभी ये कोरोना पेंडेमिक शुरू हो गई थी, ठीक है। और उस समय आप लोगों को सबको याद होगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों को स्टूडेंट्स को और घर में हाइजीन के बारे में सिखाना सबके लिए कितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम लोगों के वो हैबिट में नहीं थी वो हाइजीन। एक बच्चे को वो बेसिक चीजें हाइजीन की और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नहीं मालूम थी, जिसके कारण कि पेंडेमिक में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा परेशान हुए। तो इस तरह के टॉपिक्स को लाइक हेल्थ एंड हाइजीन, फर्स्ट एड, कि आपको कहीं अगर चोट लग जाए एंड यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और असेसमेंट फ्रॉम एनीवेयर, तो बाय दैट टाइम आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, लाइक, तो इस तरह के टॉपिक्स को करिकुलम में रखा गया है। श्योर स्टूडेंट्स गोइंग टू एंजॉय दोस टॉपिक्स, क्योंकि उन्हें भी लगता है, लाइक मेनी पीपल कम टू मी ऑल्सो, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो बहुत सारे आते हैं हमसे पूछते हैं नॉर्मली भी कि मैम कोरोना टाइम में या पेंडेमिक में हमें इन्फेक्शन टाइम में हमें कैसा खाना खाना चाहिए, क्या हाइजीन का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब इसलिए ये कंपलसरी पेपर कर दिया गया है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड नो व्हाट वी मीन बाय बेसिक हाइजीन, व्हाट इज द बेसिक न्यूट्रिशन। हम सबको ये अधिकार है जानने का कि क्या हम जो खा रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है। That is what the purpose of all these papers. तो इसके लिए आप बिल्कुल डॉक्टर सुरेश परेशान ना हो कि ये इससे बच्चों पे लोड पड़ेगा। They are going to enjoy all this. All three papers are very light. They are designed in such a way. मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। मैडम नमस्कार। थैंक यू मैम। मैडम मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं इस पर। पहला तो ये है कि जैसे बीकॉम 3rd ईयर में वाइवा होता है 100 मार्क्स का, जो ट्रेडिशनल कोर्स डिजाइन किए गए हैं, क्या वो अब है नहीं? दूसरी बात, आज तक हम लोग देख रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरी इतनी रिच नहीं है, या जो भी इंटरनल उसके मैटर्स हैं वो आप भी भली बात जान रही, हम भी जान रहे हैं कि बच्चों को पुस्तकें नहीं अवेलेबल हैं। जैसा कि इनकम टैक्स होता है, हर जो है ईयर चेंज हो जाता है, तो 500-550 रुपए किताब हम खुद खरीद करके बच्चों को अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ा हुआ मामला होता है। और लाइब्रेरी में कहते कहते संस्था प्रधान से थक जाता हूँ, लाइब्रेरी में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो जो कोर्स अब आ रहा है, जो डिजाइन किया आप लोगों ने, तो सराहनीय है, लेकिन उसके पीछे हमारी तैयारी क्या है? हम बच्चों को, उनके पास ग्रामीण अंचलों से हम लोग जुड़े हुए बच्चे आते हैं, उनके पास केवल एक मात्र वह है कि 50 रुपए 30 रुपए की जो लास्ट में एक पेपर छप करके आता है, उसी पर वो लेते हैं। पूरे सेशन किताब नहीं होती, बुक्स नहीं होती उनके पास। तो हमारा पहला तो ये होना चाहिए कि हमारी लाइब्रेरी में वो कंटेंट्स, वो बुक्स अवेलेबल हो, ताकि बच्चे उससे लाभ ले सकें, पढ़ सकें। इस पर तो थोड़ा सा आपका विचार हम चाहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतने विस्तार से इस विषय के ऊपर आपने फोकस किया। सर मुझे बहुत जानकारी, देखिए अगर हमने भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन से नॉलेज ली होती तो मुझे कॉमर्स के बारे में सर कुछ पता होता, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ सर कि इस पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। और अभी जो लेटेस्ट हम सब ने देखा कि एक तो डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा हो गई है। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा वहाँ से हिंदी में है, मैक्सिमम हिंदी में, एंड इवन रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस को बड़ा प्रमोट उस पर सर किया गया है। तो अगर हम वहाँ से डाउनलोड करके अपने बच्चों को दे सके, तब और सारे रिसोर्सेज हमारे हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे। दूसरा, ये जो प्री लोडेड टैब
की व्यवस्था शासन के द्वारा की जा रही है सर। तो ये जो टैब है सर, जो ये प्री लोडेड टैब अब जो आएंगे लाइब्रेरी में और जिसकी सुविधा हमारे बच्चों को होगी सर, इसमें जो कंटेंट्स अपलोड किए जाएंगे वो महाविद्यालयों के टीचर्स द्वारा निर्मित हिंदी में, इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में अपलोड किए जाएंगे। और ये टैब बिना नेट के भी आराम से बच्चे उसको चला सकते हैं। तो ये सुविधा सर, क्योंकि एकदम से पेंडेमिक का टाइम आया और हम सब लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे स्विच ओवर कर गए, तो स्टेप बाय स्टेप वो रिसोर्सेज शासन द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। लगातार देखिए आप डिजिटल लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन के ऊपर, और ये जो प्री लोडेड टैब की अभी 2-3 दिन पहले जियो आया है, मेरे ख्याल से आप सबने देखा होगा, तो उससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ होगा। थोड़ा सा वक्त सर जरूर लग रहा है, निसंदेह वक्त इसमें लग रहा है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है, टाइम लगेगा सर। और जब तक हम लोग अपने बच्चों से कनेक्ट होके जैसे भी हो सिलेबस के कोर्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें लाभान्वित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश चंद्र। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपके सजेशन को सर बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। हेलो, किसी और की क्वेरी? हेलो, any other query? Please unmute yourself to present your query, please. हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। ये कह रहे थे जो स्कोरिंग आपके टेबल पे था, जो 46 अंक आपने दिए हैं, ये सेमेस्टर सर बिल्कुल सर 23 और 23 जो 23 अंक देंगे वो किस, जैसे 6 सब्जेक्ट है बच्चे के पास, तो इसकी स्कोरिंग की प्रक्रिया क्या है? इसकी स्कोरिंग की प्रक्रिया ये है सर कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, ठीक है, वो परसेंटाइल और उसके हिसाब से उसके क्रेडिट्स को कलेक्ट करता जाएगा, ठीक है, और वो क्रेडिट की सूचना साल के एंड में कैंडिडेट को होगी। ये जैसे फर्स्ट एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट को मिनिमम 20 सारे जितने भी कोर्स डिजाइन किए गए हैं सर, सबके क्रेडिट उस चार्ट में आपने देखा होगा लिखे हैं। जैसे कि हमारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट है, हर एक मेजर सब्जेक्ट जो डिजाइन किया है, अगर आपने सिलेबस भी देखा होगा तो वो 6 क्रेडिट्स का है, ठीक है सर। और ये एक्सपर्ट ने किया होगा कितना प्रैक्टिकल को देना, कितना थ्योरी को देना है, वो अलग चीज है, सब 6 क्रेडिट के हैं। उसके बाद जो हमारा माइनर है ये आइदर 4 क्रेडिट का है या 5 या 6 का है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट को क्रेडिट गेन करने का ऑप्शन। जो वोकेशनल कोर्स है वो 3 क्रेडिट्स के हैं, आपके को करिकुलर है वो 2 क्रेडिट के हैं, एक्सेप्ट द क्रेडिट्स ऑफ द को करिकुलर कोर्स। जो को करिकुलर कोर्स के 2 क्रेडिट हैं, उसके अलावा जितने भी पेपर्स बच्चा पढ़ रहा है उसके जो क्रेडिट है वो क्रेडिट बैंक में उसके जमा होते जाएंगे एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और जिसको वो जान सकेगा अपने सेशन के या सेमेस्टर के एंड में कि वो कहाँ पर इस समय स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट मतलब उसकी अटेंडेंस कंपलसरी है और उसको पास होना भी जरूरी है। अभी तक स्टूडेंट सिर्फ पास होके निकल जाते थे और ये बराबर आता था कि बच्चों की अटेंडेंस, बच्चे आते नहीं है क्लास नहीं। तो जब ये क्रेडिट की भी सर एक वो बार लग जाएगा, स्टूडेंट को उतना क्रेडिट गेन अचीव करना कंपलसरी हो जाएगा थ्रू हिज अटेंडेंस, और जब तक वो उतना क्रेडिट गेन नहीं करेगा, इवन अगर वो पास भी है, अगर क्रेडिट से वो शॉर्ट पड़ रहा है तो उसको नेक्स्ट उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्या री एडमिशन मिलेगा उसे? नहीं सर, अगर वो क्रेडिट नहीं फुलफिल करता, जब तक वो क्रेडिट फुलफिल नहीं करेगा उसको नेक्स्ट स्टेज पे नहीं भेजा जाएगा। मैडम एक क्वेश्चन मेरा। जी सर बिल्कुल सर बताएं। मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। नमस्कार। और नमस्कार, और मैं ऑथर भी हूँ। जी सर। शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी जो चलती है उसकी जो बुक्स आती हैं, या केदारनाथ पब्लिकेशन जो चलता है उसकी बॉटनी की बुक्स मेरी है। जी सर। तो अभी मैंने सिलेबस देखा और मेरा लेखन कार्य चल रहा है इस पर। तो जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट यूनिट का जो वो है वो वाकई में हमारे यहाँ भी जो है वो ऋग्वेद और वो अथर्ववेद और वहाँ से पढ़ना चालू किया और फिर जाके उसको लेखन में ढालने में टाइम लगेगा, पक्की बात है ना मैडम। अब मान लीजिए हमारे पास अब ये जुलाई पहला सेशन आता है, तो पहला सेशन तक मान लीजिए किताबें तैयार नहीं हो पा रही। जी सर। एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है ये। जब ऑथर लिख के नहीं देगा तो पब्लिशर आपको नहीं देगा, पक्की बात है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें भी बहुत सारा टाइम चाहिए।
तब हम उसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है जी, वो टाइम मिल नहीं रहा है। तो ये आ रहा है कि नहीं सब तुरंत होना है, तुरंत होना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दिन रात लगेंगे, लिखेंगे, आप लोगों तक मैटर पहुंचाएंगे। दूसरी बात, एक और समस्या आ रही है कि मान लो मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ, ठीक है जी, और बॉटनी का हाई स्कूल करे हुए और इंटर करे हुए बच्चे को जब मैं पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में तो वो बेसिक सीख के आता नहीं, हम लोगों को वो चीज सब चीज सिखानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। अब मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस वाला माइनर सब्जेक्ट ले बैठा बॉटनी, ऐसे आई सर देखिए यहाँ पे दो चीजें होगी, लेगा वही फिर क्या करेंगे हम लोग? होगा सर, लेगा वही स्टूडेंट सर जिसका इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट होगा तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड के साथ सर वो आएगा। ठीक है सर। और सर शिक्षक तो वो शिल्पी होता है सर कि वो मिट्टी को भी सोना कर सकता है, और आप तो एक बहुत बड़े शिल्पकार है सर। इतनी किताबें आप लिख रहे हैं, इतने आपके पब्लिकेशन हैं, स्टूडेंट के सर पे आपका हाथ रखने से ही वो निखर जाएगा सर। तो आप सब हम सब स्टूडेंट्स की सर हिम्मत है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रीड है सर हम लोग, है ना। तो हम लोग भी सब तैयार कर रहे हैं अपने कोर्स को, थोड़ा थोड़ा यूनिट वाइज नोट्स और उसको रेडी कर ले रहे हैं कि जब बच्चे हमारे पास आए, जब तक पब्लिकेशन नहीं आती है सर, तो हम लोग कुछ मैटर अपने स्टूडेंट को दे सके, उनको कुछ जानकारी सर दे सके, है ना, कि वो बच्चे भी हमारे रिच कल्चर को और उसको वो समझ सके। और निसंदेह सर हम आप सब बहुत सक्षम है, बहुत सीनियर है, और आप इस मंच से जुड़े हैं और आप विद्वान है सर, और मैं आपकी इस बात को भी पूरी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन मुश्किलों को भी उच्च अधिकारियों के सामने मुझे मौका मिलते ही इसको मैं रखूंगी। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन और है सर कि जैसे जब सिलेबस बना था तो एक लिंक सर्कुलेट हुआ था फीडबैक के लिए, वो फीडबैक सर इसलिए वो लिंक सर्कुलेट हुआ था, मुझे लगता है आप लोग तक पहुंचा नहीं या ध्यान नहीं दिया या मिला नहीं, तो उस लिंक के माध्यम से सर सिलेबस को फाइनली हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, काउंसिल की वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले हम लोगों ने उस फीडबैक को लिया था, और आप देखेंगे सर उसमें मतलब हजारों की तादाद में फीडबैक आए थे, कई विषय में तो बहुत सारे आए थे। फिर उनको पार्डन मैम, ऐसा है कि नो डाउट सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा सेटअप है। मैंने पूरा बॉटनी का टावर ब्रिज का मैंने देखा था जी सर, बच्चे के आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या बताया कि टाइम इज ए लिमिटिंग फैक्टर हो गया, जैसा हमारे यहाँ लिमिटिंग फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पर जो क्वालिटी हम देना चाह रहे हैं, हम जो क्वालिटी देना चाह रहा है, तो वो क्वालिटी कैसे ला पाएगा, फिर ये तो दिक्कत आएगी ना थोड़ी सी। बिल्कुल सही बात है। और सर यहाँ पे अब एक और भी हमारे पास सुविधा हो गई है ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे आप बॉटनी के इतने बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान है सर, तो अगर हमारे कॉलेज में या हमारे बच्चों को कोई बॉटनी की दिक्कत होती है, हम ऑनलाइन अपने बच्चों को आपसे कनेक्ट करवा देंगे और आप उनका मार्गदर्शन कर देंगे, तो कुछ न से तो कुछ तो हमें मिलेगा, है ना। तो अभी ये है ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी सभी को। बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं कि मेहनत हम सब लोग को मिलकर सब करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है सर, आप इतना बढ़िया लेखन कार्य है तो अगले सत्र तक तो आपकी कुछ किताबें बच्चों को अवेलेबल हो जाएंगी बॉटनी के थ्रू, है ना। धन्यवाद सर। कोई और क्वेरीज है प्रियंका? थैंक यू मैम क्वेश्चन आंसर के लिए। और डॉक्टर शिप्रा सिंह ने हैंड रेज किया, आई थिंक शी हैज सम क्वेरी। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ टू आस्क द क्वेश्चन। नमस्ते मैम, मैं शिप्रा सिंह, सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या कॉलेजेस को ये अधिकार होगा कि वो एक कॉम्बिनेशन बनाए अलग अलग स्ट्रीम के, या केवल स्टूडेंट पे छोड़ा जाएगा कि वो किसी भी स्ट्रीम के कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। मैडम आप किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है आपका कॉलेज? मैम भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी से। तो आगरा यूनिवर्सिटी ने तो बड़ा सहयोग किया है इस एनईपी के सिलेबस फॉर्मेशन में, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं आगरा यूनिवर्सिटी से और आगरा के रीजन के कॉलेजेस के, तो उन सबको भी एक बार मैं आभार ज्ञापित करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और शिप्रा मैडम, आपकी यूनिवर्सिटी ने जनरली जहाँ पर भी ये एनईपी लागू होने से पहले
कॉलेजेस से उनके सिलेबस, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और वो कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज में हेल्प कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी उनसे फीडबैक ले रही है, ये डाटा वहाँ से कलेक्ट कर ले रही है। उसके बाद वो इस तरह से कॉम्बिनेशंस कॉलेजेस से भी मांग रहे हैं और यूनिवर्सिटी एक मास्टर प्लान उस बेसिस पे बना रहा है कि ये किस तरह से ये कॉम्बिनेशंस बच्चों को दिया जाए, कितने को ओपन किया जाए और किस ढंग से इसको ओपन किया जाए, ताकि बच्चे को वो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट की या वो एक दूसरे के साथ उसको लेने में दिक्कत ना हो। तो ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाने होंगे, है ना, तो इसलिए हर कॉलेजेस से वो ले रहे हैं, एक टाइम टेबल बनवा के हर कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी ले रही है। मुझे लगता है आप लोगों के भी कॉलेजेस से गया होगा या वो लेंगे अभी, नहीं तो क्योंकि नंबर से इसको इम्प्लीमेंट करना है। यूनिवर्सिटी हर कॉलेज से मांग रही है कि आपके यहाँ संचालित जो भी विषय हैं उसमें से आप क्या क्या माइनर और क्या क्या आप वोकेशनल और को करिकुलर आप रन कर सकते हैं, और आपके यहाँ जो सब्जेक्ट्स है मेजर उनमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस है, और उसको आप अपने यहाँ अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से एक टाइम टेबल विथ कॉम्बिनेशंस वो ले रहे हैं, और उसके बाद वो ओपन करेंगे। आप स्टूडेंट के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते मैम, आप स्टूडेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ये हर एक इंस्टीट्यूट को अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ साझा करते हुए। Thank you, ma'am. Okay, welcome. Any other query? If you have any query, please unmute yourself and put up your question. I think all the participants are very happy with the presentation, and they have come to know so many things, all the details about the new education policy. Thank you so much, ma'am, for this compact and composite presentation. We have learned a lot about this policy, and actually there were really so many misconceptions about it. If I talk about myself, मैं जब अपनी कोलिग्स के साथ इसको डिस्कस करती थी तो हमारे सबसे बड़ा ये था कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा मैथ्स भी पढ़ेगा, बच्चा म्यूजिक पढ़ेगा, आई मीन इट विल टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट, बच्चे का करियर कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा। लेकिन अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से स्ट्रीम्स भी बनी रहेंगी और किस तरह से मैम द पर्टिकुलर रीजन विल डेवलप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो लोकल चीजें हैं उनका डेवलपमेंट, जो रीजनल चीजें हैं उनका डेवलपमेंट, उनका प्रचार और प्रसार और उनको बनाए रखना, उनका संरक्षण, ये भी बहुत जरूरी है। जी मैम, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम कि आपने इतनी सारी जानकारी हम लोगों को बताई। और अब मैं अपनी अध्यक्षा अपनी प्राचार्य मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो अध्यक्षीय भाषण दें। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अध्यक्षीय उद्बोधन। जी मैम, आवाज मिल रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतनी विस्तार से आपने जानकारी दी। बहुत सारी जिज्ञासाएं थी लोगों के मन में, मुझे लगता है कि सारी क्वेरी के जवाब अब मिल गए होंगे। और जहाँ तक नई शिक्षा नीति की बात है, बहुत सारी इसमें अच्छाइयाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अभी आज के जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी ने भी बताया कि भाषा का बहुत ज़्यादा उसमें एक इशू ऐसा था कि जो ग्रामीण एरिया से बच्चे आते थे उनको प्रॉब्लम होती थी और भाषा की वजह से ही वो मात खा जाते थे। तो जो इसमें उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ग्रामीण क्षेत्र से या पिछड़े क्षेत्र से हमारे छात्र छात्राएं आएंगे, निश्चित ही उनको इसमें बहुत सुविधा है। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें भी मातृभाषा और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है। कहते हैं कि बच्चे जब पिछड़े क्षेत्र से या अन्य भाषाभाषी क्षेत्र से जब पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी मातृभाषा कुछ और होती है, वहाँ पर जब पढ़ते हैं तो भाषा कोई और होती है। तो उनकी जो आधी एनर्जी है वो तो भाषा को सीखने में लग जाती है। तो उनके अंदर जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। भले ही धीरे धीरे वो एडजस्ट करते हैं, लेकिन शुरुआत में उनको समस्या आती है।
तो इसमें जो अपनी मातृभाषा को महत्व दिया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। एक जो समस्या आती थी जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तब भी और अभी भी, कि ग्रेजुएशन में अगर 1 साल किया या 2 साल उसने करने के बाद कुछ और करने का मन हुआ, बीच में छोड़ के चला गया, तो उसके 1 या 2 साल व्यर्थ चले जाते थे। लेकिन अब जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा तो उनका ये जो समय है निरर्थक नहीं जाएगा, निश्चित रूप से वो सार्थक रहेगा। नई शिक्षा नीति में एक और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे संगीत, खेल और योगा, इनको साइड में कर दिया गया था, उप विषय के रूप में थे, लेकिन इसमें उनको मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ दिया गया है। निश्चित से ही ये जो विषय है बहुत उपयोगी है और इनके बारे में बहुत पहले से ही जो स्टेप अभी लिया गया है पहले ही लिया जाना चाहिए था, बहुत ही सार्थक है। इससे जो हमारे छात्र छात्राएं, चाहे वो म्यूजिक के हो, चाहे वो खेल से जुड़े हो, चाहे योगा से जुड़े हो, निश्चित ही लाभान्वित होंगे। और इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि उनको जॉब मिला और वो क्लास में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि हमको कैसे पढ़ाना है। उनके सामने तरह तरह की समस्याएं आती हैं, उनसे वो रूबरू जब होते हैं तो अनुभव के आधार पर सीखते थे, लेकिन इसमें जो प्रशिक्षण की बात की गई है तो जो समस्या उन्हें बाद में फेस करनी पड़ती थी उनका समाधान उन्हें पहले ही मिल जाएगा। तो निश्चित ही इससे हमारे छात्राएं और हमारे प्राध्यापक सब इससे लाभान्वित होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और साथ ही जो एक विषय वाली बात अभी आपने विस्तार से इसके बारे में प्रकाश डाला कि कई बार ऐसा होता है कि उसमें इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है लेकिन व्यवस्था के कारण विषय दूसरा लेना पड़ता था। कई बार स्टूडेंट्स कहते थे कि मैं तो ये सब्जेक्ट लेना चाह रही थी, लेकिन वो वहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में है नहीं या इस फैकल्टी में नहीं है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी सुविधा है कि अपने अनुसार, अपने रुचि के अनुसार छात्र छात्राएं पढ़ सकेंगे, और जब अपने रुचि का विषय पढ़ने को मिलता है तो निश्चित ही अच्छा रिजल्ट देते हैं छात्र छात्राएं। ये नई शिक्षा नीति की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। बाकी कहीं ना कहीं परेशानियाँ आती हैं, थोड़ा बहुत तो परेशानी आएंगे। मान लीजिए किसी हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा है, वो अहिंदी भाषी क्षेत्र में चला जाता है तो उसको कुछ परेशानी सामने आ सकती है। मान लीजिए कोई मराठी या तमिल तेलुगु के क्षेत्र में चला गया, उसे कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन हर काम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं, और नई शिक्षा नीति में जो मैं देख रही हूँ अच्छाइयाँ अधिक दिख रही हैं, कमियाँ कम है। और धीरे धीरे जो समस्याएं होंगी तो ये मान के चलते हैं उनका भी समाधान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको, और हमारे जो पूर्व वक्ता, हमारे मुख्य अतिथि, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला था। और मेरे अपने डायरेक्टर सर जिनका निर्देशन मुझे मिला था, उन्होंने इस वेबिनार से जुड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन अपने व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पाए। लेकिन पुनः मैं उनका आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। और धन्यवाद हमारी प्रियंका मैडम का, जो इतने दिनों से पूरी तरह से लगी हुई है और उनका बहुत ही कोऑपरेशन मिलता है हमारे महाविद्यालय को। उनका भी आभार। धन्यवाद। थैंक यू। मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आप सभी के माध्यम से ही ये प्रोग्राम संभव हो सका, सफल हो सका, इसका सफल आयोजन हो सका। तो सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे पैट्रन, हमारे अध्यक्ष जो है, सभी के अध्यक्ष, हम सभी के जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी पैट्रनेज में हमारा ये प्रोग्राम आयोजित हो सका। और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रोफेसर पी.के. जैन सर का, कि उन्होंने इतने बिजी होने के बावजूद भी हमें समय दिया, और न केवल समय दिया बल्कि हमें कितनी अच्छे से चीज़ों को बताया, जो बेसिक है, जो मेन चीज़ें हैं,
जो क्रक्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में हमें बताया, हमें जानकारी दी। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से उनके होने से हमारे कार्यक्रम की गरिमा बहुत बढ़ गई। और साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे प्रिंसिपल मैम का। उनके दिशा निर्देशन के बिना तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। उनका गाइडेंस था जिसके कारण ये प्रोग्राम हो सका। धन्यवाद मैम। और सबसे क्या कहें, सबसे की रोल प्ले करने वाली हमारी मैम, हमारी कीनोट स्पीकर मैम डॉक्टर नीतू सिंह मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से इतनी सारी गहरी बातों को बताया जिसके बारे में हम सोचते थे पता नहीं क्या है, कंफ्यूजन हमें रहती थी, लेकिन आपने कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हमें समझाया, हमें उसके बारे में जानकारी दी। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और उसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी यहाँ के जितने भी विद्वजन हैं, जितने भी एमिनेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि बहुत विद्वान लोग हैं, सभी जानकार लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के जानकार हैं। उन्होंने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही धैर्य के साथ चीज़ों को सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि चीज़ों को एनालाइज किया, क्वेश्चंस भी रखे। बहुत अच्छे से इस जो जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही थी उसका उन्होंने लाभ उठाया। और निश्चित रूप से पार्टिसिपेंट्स के बिना तो कोई कार्यक्रम संभव ही नहीं है। तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। और एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ जो भी इस कार्यक्रम के हिस्से रहे, जो भी इस कार्यक्रम का पार्ट रहे। और बस इसी के साथ मैं कार्यक्रम की समाप्ति की इजाज़त चाहती हूँ अपनी प्राचार्य मैडम से। थैंक यू। जी मैम। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कृपया आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फीडबैक लिंक आपको शेयर किया जाएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस फीडबैक लिंक को आप आज 4 बजे तक आप उसे भर लें, क्योंकि उसके बाद वो लिंक बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो कृपया परेशान ना हो कि सर्टिफिकेट कब होगा, कैसे होगा। सो द लिंक विल बी अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप टिल 4 o'clock in the evening by today. I request all you कि आप उसका फायदा उठाएं और सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक चीज डॉक्टर प्रियंका आपसे कहना चाहूंगी यहाँ पर। जी मैम बताइए। जब आपको मिले और आपको सिलेबस फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई ऐसा फीडबैक है जो आपको लगता है या आपको लगता है कोई सजेशन आए हैं, तो प्लीज डू कन्वे टू मी। श्योर मैम, श्योर। ताकि हम उसको कहीं पे भी, जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, हम उसको बिल्कुल सजेशंस के थ्रू करेंगे। तो आप मुझे उसको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? बिल्कुल मैम, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम रहा है उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई है वो यूट्यूब में शीघ्र ही डाल दी जाएगी। तो अगर इन जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, यदि कोई चीज़, कोई पार्ट आपसे मिस हो गया हो या फिर कोई चीज़ आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर उसे सुन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। धन्यवाद, नमस्कार।